Hello students, welcome back. I am Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes. We are talking about the first chapter of class 9 biology, that is improvement in food resources. Up to this time we have completed the agricultural part of this chapter and now onward we are going to start with the next half of this chapter and that is animal husbandry. Students, as I told you in the beginning, India is based on agricultural product and parallelly nowadays it is also based on the animal husbandry. Means after agriculture, the second source of income or the economy is built up by the animal husbandry. Okay. Now, first of all, we will see that what is meant by animal husbandry. Okay, animals means that can be any type of animal. Generally, the animals which are used in this animal farming, we can say, are the cattle, some birds. Okay, cattle like cows, buffaloes, birds like hens, emu. Right, emu is also there, but it is not on large scale. Goats are there, sheep are there, even fish farming is there, beekeeping is also there. Right, so all these are come under the animal husbandry. Husbandry means what? In short, हम जो भी एनिमल्स को पाल रहे हैं, उनका रेयरिंग कर रहे हैं, उन एनिमल्स को अच्छी तरह से शेल्टर देना, उनकी केयर करना, उनका जो हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ, उनकी केयर करना, उसको मेंटेन रखना और उनका जो ब्रीडिंग है, लाइक रिप्रोडक्शन है, उस पे फोकस करके इन सारी चीजों को ध्यान में रख के उनका इकोनॉमिकल यूज करना, दैट इज व्हाट रेफर एज एनिमल हस्बेंड्री इन सिंपल लैंग्वेज. सीधी लैंग्वेज में कोई भी एनिमल्स को या पशु या पक्षियों को पालना अपने बेनिफिट के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, दैट इज व्हाट रेफर एज दी एनिमल हस्बेंड्री. हस्बेंड्री मीन्स व्हाट? ये जो एक वर्ड है इसका ये मतलब है कि आपके पास जो भी सोर्स है, रिसोर्स है, उसको अच्छे से यूज करना, दैट इज व्हाट हस्बेंड्री. एंड व्हाट इज द रिसोर्स वी हैव? वी हैव एनिमल्स. व्हाट वी हैव? एनिमल्स. So, animal is a big resource of many things for us that we have to use very carefully. जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो वो सेकंड पेज पे आती है. फर्स्ट पेज पे आता है आपका एग्रीकल्चर. और एनिमल हस्बेंड्री इज ऑलवेज हमेशा एग्रीकल्चर के साथ साथ ही की जाती है एज अ सेकेंडरी बट पैरेलल business. Agriculture is also sort of business because we are sowing the seeds, harvesting, selling in the market, taking the profit and all. So like that we have to do same thing for animals. Clear? Now in India generally animal husbandry is carried out in 4 parts या फिर 4 टाइप के मेजर एनिमल्स होते हैं. पहला होता है आपका कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग में क्या आता है? कैटल फार्म में आता है आपका काउ फार्मिंग, बफेलो फार्मिंग. क्लियर? सेकंड आता है आपका पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्रीज आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके विलेज में या आउट ऑफ द सिटी देयर आर मेनी पोल्ट्री फार्म्स. देयर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ पोल्ट्री फार्म्स. वन इज ओनली फॉर एग एंड वन इज ओनली फॉर द फ्लैश. ओके, लेयर्स और द ब्रॉयलर्स. वो 2 है जो हम बाद में देखेंगे. तीसरा होता है फिश फार्मिंग. Fish farming. Clear? मतलब in that the rearing of fish is carried out and the last one is beekeeping या bee farming. उसको apiary भी बोलते हैं. So these 4 main type of rearing of animal is carried out in India on large scale. Now in cattle farming nowadays goat farming is also on great demand. गोट फार्मिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा नंबर में, मायनों में की जा रही है आजकल, क्योंकि
The farmers are also educated. They are using different technologies. They are using different techniques. They are taking the training before. वो ट्रेनिंग लेके एक सिस्टमैटिक वे से अपना कैटल फार्मिंग करते हैं. अंडरस्टैंड? सो this animal husbandry is become a great source of economy for the farmers who are having less land area but having quite high cost investment, isn't it? Even हमारे गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो भी आप प्रोजेक्ट रन करना चाहते हो उसके लिए कुछ सब्सिडी ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग टू अस सो दैट वी कैन स्टार्ट इट इजीली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. We'll first talk about the cattle farming. In cattle farming, we are talking about two things, that is cows and buffaloes. हमारे देश में cow is a great source of two things. First, एक तो हमारा aesthetic sense है cow के प्रति, और दूसरी बात milk. Okay, milk, और उसके साथ साथ जो आती है third thing, that is what the oxen, और जो खेती में काम करने के लिए जो रहते हैं बुलक्स वगैरह, वो भी इसी के साथ साथ आते हैं. ठीक है. द काउ, इट्स साइंटिफिक नेम इज बॉस इंडिकस. इनका साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस इंडिकस. ओके, व्हाई डिड आई टेल यू? बिकॉज इन नेक्स्ट चैप्टर डायवर्सिटी यू आर गोना स्टडी अबाउट दिस. साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है. So let's come to this point that cows are rare on large scale. अभी हम जब कोई भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए चूज करते हैं तो एक स्पेसिफिक उसका ब्रीड चूज करते हैं. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस ब्रीड? ये ब्रीड क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड यू कीप इन माइंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Breed means a variety, a species of an animal which is derived from the same species. किसी भी दो मेल एंड फीमेल से जो एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम ट्रेट बोलते हैं, उनको क्रॉस करके जो वैरायटी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट स्पेसीज हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रीड. और इसकी एक खास बात होती है, जो भी कैरेक्टर ब्रीड में होते हैं वो कैरेक्टर उन स्पेसीज के दूसरे एनिमल में नहीं होते, बिकॉज इट इज obtained by crossing the animals of same species having certain characteristics which we are looking for. जैसे हाई मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी होती है या मिल्चिंग पीरियड होता है, या फिर दे मस्ट बी रफ एंड टफ, जैसे उनका मेल एनिमल्स चाहिए हमें कैटल में, रफ एंड टफ चाहिए खेती में काम करने के लिए या बाकी चीजों के लिए. सो लाइक दैट दिस ब्रीड इज डिराइव्ड. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द ब्रीड these cows are categorized into 3 main groups. मतलब हमें अगर रेयरिंग ऑफ दोज एनिमल्स करना है तो हम किस लिए करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है. सो फर्स्ट इज योर ड्रॉट ब्रीड. ड्रॉट you understood ड्रॉट breed I told you just now. Now in this case the animals both male and female of cow are tough. मतलब उनका जो बॉडी होता है वो बहुत ही टफ होता है, उनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, बट वो यूज किस लिए किए जाते हैं? दे आर यूज्ड टू वर्क इन द फार्म. जैसे प्लाविंग आता है, टिलिंग आता है, या इरिगेशन आता है. अभी इरिगेशन के लिए कैसे क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स, उसमें देखो आप एक ऐसा व्हील रहता है बड़ा टायर के जैसा, उसको एक बुलक बांधा हुआ रहता है, दैट बुलक मूव्स ऑन, दैट वाटर कम आउट ऑफ द वेल. उस तरह से ऐसे जो हैवी वर्क होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये यूज किए जाते हैं. सो ऑल दोज ब्रीड्स विच आर यूज टू कैरी द हैवी थिंग्स, मतलब उनसे हैवी एक्सरसाइज करवानी है. एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज मतलब उनसे हैवी काम वर्कआउट करवाना है. जैसे खेती में प्लाविंग करो, टिलिंग करो, इरिगेशन में उनका यूज हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हो, या फिर कोई भी जो सामान है हैवी वो कैरी करने में हो. इस केस में ड्रॉट ब्रीड का यूज किया जाता है. एंड मेल ड्रॉट ब्रीड इज यूज्ड हियर
but female draught breed are giving little bit amount of water as well, which can be fulfill the demand of that individual farmer. Clear? Come to the next breed, that is dairy breed. Which breed is this? We have seen draught breed. Now this is dairy breed. The name itself indicates what is meant by dairy. Dairy means the milk. Clear? मिल्क जहाँ पे हमें मिलता है, जनरली हम उस चीज को डेयरी बोलते हैं, बट द ब्रीड्स विच आर स्पेसिफिकली डिराइव्ड फॉर ऑब्टेन द मिल्क इज कॉल्ड एज द डेयरी ब्रीड. Here in this case the focus is mainly given on the female breed. Why? Because the milk giving capacity या फिर मिल्चिंग पीरियड भी बोलते हैं उसे, वो उस ब्रीड का कितना है या फिर वो एवरेज कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है इन अ मिल्चिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज द डेयरी ब्रीड. उनके अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटी, उनका जो अमाउंट है मिल्क प्रोड्यूस करने का, according to that these breeds are evolved. In India there are many we will see later. In India there are many such breeds which are mainly derived for milk producing practices. अच्छा, मैं बताती हूँ आपको ये मिल्चिंग पीरियड क्या होता है. Where should I write? Okay, I will write here. MILCHING, मिल्चिंग पीरियड. It is applicable in both cows and buffaloes. देखो, when the cow gives the milk after giving birth to the young one till next pregnancy, right? ये जो बीच का पीरियड है किसी भी मिल्च एनिमल का, चाहे वो कैमल हो, गोट हो, शिप हो, बफेलो हो या फिर काउ हो, इट इज रेफर बाय द सेम टर्मिनोलॉजी, मिल्चिंग पीरियड. आई एम रिपीटिंग, किसी भी एनिमल का, फीमेल का यंग वन को बर्थ देने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक का जो पीरियड है दैट इज अ मिल्चिंग पीरियड. और उस पीरियड में जो वैरायटी, जो ब्रीड, जो स्पेसीज ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है इन टर्म्स ऑफ लीटर इन दैट वन पीरियड, दैट आर रेफर एज द डेयरी ब्रीड. ओके, नाउ डुअल पर्पस ब्रीड. डुअल पर्पस मतलब क्या? जो कि डेयरी का भी काम कर रहा है, सॉरी ड्रॉट का भी काम कर रहा है, और डेयरी मीन्स in short, in this dual purpose breed, the male is so strong to carry out all the work, heavy work which I have explained you at that time, and the female breed of this category, this group is having high milching period. Clear? High milching period means उनके milching period में ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो. So ऐसी कौन सी वैरायटी है? There are many varieties actually, but few I have mentioned over here. First is red Sindhi. As name indicates, it is reddish in color. Okay, it is a draught breed. It is mostly used to work in the field. Then Sahiwal. Sahiwal is referred as the high milk producing variety or the breed up till now, because the milching period of Sahiwal is comparatively more than that of rest of breeds of the milch animals. ठीक है? And the last one is Gir. Gir, it is found in the Gujarat region mostly. You may have heard about the Gir forest. So in that premises, these cows are rare on large scale. So these are the varieties of cow. Now come back to the another cattle, that is buffalo. Buffaloes are, see, जो काउज है ना, इनको ड्रॉट एनिमल कहते हैं. ड्रॉट एनिमल जैसे राजस्थान, गुजरात ऐसे रीजन में जहाँ पे रेनफॉल कम है, पानी कम है, ये रीजन में उनको रियर किया जाता है. हमारे महाराष्ट्र में भी किया जाता है अप टू सम एक्सटेंट. एंड बफेलोज आर रेफर एज द वाटर एनिमल्स. जैसे कि द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर मिल्क, केरला है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, इन स्टेट में ज्यादा से ज्यादा पानी की क्वांटिटी, सदर्न स्टेट्स में पानी की मात्रा ज्यादा है, तो उस रीजन में दिस इज रेयर ऑन मोस्ट प्लेसेस. ठीक है? नाउअडेज बोथ द कैटल्स आर रेयर एवरीवेयर बाय मेकिंग दीज फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर देम. नाउ द scientific name of buffalo is Bubelus. Okay, Bubelus.
जस्ट याद रखना आपकी इनका साइंटिफिक नेम ये है, ठीक है। नाउ बफेलोज आर characterized by their heavy weight and high milk producing animals as compared to the cow. Yes, they are producing more milk. Some varieties I have given here. One is Murrah. It is found in the Punjab and Haryana state on large scale. It is rare over there. इनका ये जो फीमेल होती है उनका वेट अप्रोक्सीमेटली, आई एम गिविंग दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, इट इज नॉट फिक्स कि उतना ही वेट होगा। मुर्रा की जो फीमेल ब्रीड होती है उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 430 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक होता है, और जो मेल होते हैं उनका वेट 500 से 575 किलोग्राम तक होता है। ओके, ये जो वैरायटी है ये थोड़ी सी शॉर्ट, मोटी और हाई, मतलब उनकी लेंथ ज्यादा होती है। उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो ऐसे राउंड के, सींग जो होते हैं उनके ऐसे कर्ड होते हैं एट दैट प्लेस ओनली, सब लॉन्ग इलोंगेटेड, बट दे आर राउंड एट द प्लेस ओनली। एंड द मिल्क दे आर प्रोड्यूसिंग इन वन मिल्किंग पीरियड इज अबाउट 1800 to 2500 लीटर, मतलब एक मिल्किंग पीरियड में ये इतना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। The second variety is Mehsana. This is the variety which is rare in Gujarat, mostly in Vadodara region, and this variety or this breed weigh approximately the 569 an average kilogram per breed. See, this animal produces, this breed produces 1200 to 2500 liter of milk in one milking period. And the last one is Surti. It is also a very famous breed which is being chosen by the people for animal husbandry because it also gives high milk production, that is 1600 to 1800 liter in one milking period. ठीक है? Now one thing you keep in mind. Here I told you that these cattle are reared for two purposes. एक जो उनकी मेल होता है that is been used for the agricultural task, and जो फीमेल होती है, फीमेल जो ब्रीड होती है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। नाउ सी, जो भी डेयरी ब्रीड्स होती है या फिर हाई मिल्क यील्डिंग जो ब्रीड्स होती है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो काफी बड़ा होता है, उनका अडर काफी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा खाना खा सके और उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड दे विल कन्वर्ट इनटू द मिल्क। वन इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट बफेलोज मिल्क। नाउ एट प्रेजेंट बफेलोज मिल्क इज रेफर्ड एज द मोस्ट न्यूट्रिशियस मिल्क। व्हाई? Because it contains most of the nutrients, like it contains fats. But ये जो सुरती है ना, इसके पर लीटर में 8 to 12% फैट होता है, provided it does not generate the क्या बोलते हैं उसे, cholesterol level, it does not allow to grow. Along with that, calcium is there, protein is there. ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, फैट्स आर देयर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो देयर। और बफेलो का जो मिल्क है दैट मिल्क इज रेफर मोस्ट प्रोबेबली टू प्रोड्यूस द मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक जो आपका खोआ होता है, रबड़ी होती है, या फिर घी होता है, या फिर कर्ड होता है। ये सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए काउ से ज्यादा बफेलो का मिल्क प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि द हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू, हाई फैट वैल्यू, along with that less cholesterol. So at present buffalo's milk is referred as the ideal milk and is quite more beneficial to the person, to the farmer who is rearing this animal for their economic value. Okay, now the thing breed which I told you कि हमें एक ऐसा breed चाहिए जिसमें हमारे डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट होनी चाहिए, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।